Good morning, dear students. Welcome all of you in today's lecture. Today we will start our biology section for CBSE board examination. In this biology section, we have to study mainly two units. First unit is living things and their life processes, and second unit is natural environment. Among the first unit, that is living things and life processes, we have to study four chapters. Out of that, first one is life processes. Second one is control and coordination. Third one is how do organism reproduce. Fourth one, heredity and evolution. Then in second unit, that is natural environment, we have to study three chapters. Among that, first one is our environment. Then second one is sources of energy, and the third one is management of natural resources. So in this way, total 7 chapters are there in CBSE board examination. Among that, first chapter today we will start. This chapter is life processes. Today we will see the introduction about life processes. Then one by one we will cover each and every life process. So let's start with this topic. Firstly, we should know what is meant by life processes, right? So life processes means what? The basic essential activities performed by any organism. So basic essential activities means what? Digestion, respiration, circulation, excretion, etc. So these are essential activities because only these activities are responsible to existence of us, or any organism can survive only because of these essential activities, right? So these all essential activities are called as life processes, and these life processes are also known by the name maintenance functions or maintenance processes. These maintenance processes must go on every time. That means even when they are not doing anything particular, that means living things कुछ भी नहीं कर रहे हैं, at that time also these maintenance functions or life processes are continuously going on. For example, we are just sitting in the class, or we are just asleep. इन दिस टू एक्टिविटीज, दैट मीन्स फर्स्ट वन कि हम सिर्फ क्लास में बैठे हैं, या सेकंड वन हम सो रहे हैं, फिर भी ये हमारे बॉडी के मेंटेनेंस फंक्शंस और मेंटेनेंस जॉब कंटिन्यूअसली चालू ही रहते हैं. ऐसा नहीं है कि हम कुछ वर्क कर रहे हैं एट दैट टाइम ओनली दिस लाइफ प्रोसेसेस विल गो ऑन. तो ऐसा नहीं है. किसी भी सिचुएशन में जब तक ह्यूमन बीइंग अलाइव है तब तक ये लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली चालू रहते हैं. एंड दीज लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म देयर एक्टिविटीज बाय कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर. मतलब एक दूसरे से वो कोऑर्डिनेट करते हैं, एंड देन ऑल ह्यूमन बींग्स हो या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, उनको सर्वाइवल के लिए हेल्प करते हैं. अब ईच एंड एवरी एक्टिविटी इंडिविजुअली काम करके कोई फायदा नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, डाइजेशन करने के बाद जो भी फूड हम कंज्यूम करने वाले हैं, उस फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस जरूरी है, राइट? मतलब डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन ये इंटरलिंक्ड प्रोसेसेस है. In this way, all the life processes or all the maintenance jobs perform their functions by together, right? Now, which are the most important life processes? Actually, in this topic, we are studying life processes related with the human being. Okay, so which are the main life processes which are very important for the human being? First one is nutrition, then transportation, respiration, then excretion, then reproduction, and then metabolism. Okay, now among these all processes, there is a one process, that is reproduction. This reproduction process is not responsible or not very important for survival of any living organism. When we will see these all processes like nutrition, transportation, respiration, excretion, these are necessary for the survival of any organism, but reproduction is not necessary for the survival. This process is necessary for continuation of species. किसी भी ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस अर्थ प्लैनेट पे कंटिन्यू रहना है, इसके लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज वेरी इसेंशियल. बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि विदाउट रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं हो सकता. Okay, so we can say nutrition, transportation, respiration, excretion, and metabolism, these are essential life processes, and reproduction is non-essential life process. Okay, in this way we can categorize these life processes. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि all life processes perform their
functions or perform their activities by a proper coordination. So how this coordination takes place? Firstly, we should know for completion of these all life processes, we need a energy. And then from which source or from where we will get this energy? So firstly, the energy source is outside the body. जैसे कि हम कहते हैं कि हम प्लांट्स या अनदर एनिमल्स इनको कंज्यूम करते हैं, तो प्लांट का जो फूड है या एनिमल्स जो है ये हमारे लिए एक एनर्जी सोर्स है, एंड दिस एनर्जी सोर्स इज एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स. हमें क्या करना है, दिस एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स को हमारे बॉडी में एंटर करवाना है, एंड देन इस एनर्जी सोर्स में जितनी भी एनर्जी है वो एनर्जी हमारी बॉडी यूटिलाइज करने वाली है. फिर ये कौन सी यहाँ पे एक प्रोसेस है जो इस एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स को ह्यूमन के बॉडी में हो या किसी भी एनिमल के बॉडी में एंटर करवाती है. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. राइट, न्यूट्रिशन प्रोसेस में एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो आउटसाइड द बॉडी एनर्जी सोर्स है उस एनर्जी सोर्स को हम हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हैं, एंड वो एनर्जी सोर्स कौन है, नथिंग बट फूड. एंड ये फूड कंज्यूम करना, इस लाइफ प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं. राइट, अब जैसे जैसे बॉडी की साइज किसी भी ऑर्गेनिज्म की बढ़ेगी वैसे वैसे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है. और इस न्यूट्रिएंट्स में मोस्टली क्या रहते हैं, तो मोस्टली देयर आर कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स. राइट, मतलब जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं ऑल फूड इज कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल. राइट, अब ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए ये फूड डिफरेंट डिफरेंट है. ओके, मतलब न्यूट्रिशन भी एक सभी ऑर्गेनिज्म में सेम रहेगा ऐसी बात नहीं है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है. एक फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, अगर ह्यूमन बीइंग हम कंसिडर करते हैं तो ह्यूमन बीइंग वेजिटेबल्स भी खाता है, फ्रूट्स भी कंज्यूम करता है, एज वेल एज मीट जिसको हम नॉन वेज कहते हैं वो भी कंज्यूम करता है. वाइल अगर हम वाइल्ड एनिमल्स देखेंगे जो कि फॉरेस्ट में मिलते हैं आपको, these animals only prefer meat, they will not consume vegetables or fruits. So in this way अलग अलग ऑर्गेनिज्म की फूड रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग अलग रहेगा. जैसे कि ओनली प्लांट्स कंज्यूम करने वाले या प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड रहने वाले ऑर्गेनिज्म जिनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स, मतलब उनका वो न्यूट्रिशन है. देन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करके खाने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या कुछ एनिमल्स रहते हैं, उनको हम कहते हैं कार्निवोर्स. देन प्लांट्स एज वेल एज मीट और एनिमल्स, इन दोनों के ऊपर डिपेंड रहने वाले ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ओमनिवोर्स. जैसे कि ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओमनिवोर. मींस व्हाट, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है, बिकॉज फूड रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ऑल ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट डिफरेंट. करेक्ट. सो ये है फर्स्ट न्यूट्रिशन प्रोसेस. अब किस तरह से न्यूट्रिशन ये अदर प्रोसेसेस से लिंक्ड है ये हम देखेंगे. अब जैसे ही फूड हमने कंज्यूम किया, दैट मीन्स कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में एंटर किया, तो ये कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स अलग अलग है जो मैंने आपको पहले से बताया. मीन्स व्हाट, ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर वेरिड, एंड these sources when enter into our body there should be a breakdown of these sources, right? And all sources when they will get breakdowns in our body, the energy released from these sources should be in common form. क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, सपोज हम यहाँ पे अगर कंसिडर करेंगे, तो ह्यूमन बीइंग ऑल द लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट करता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी विच इज अवेलेबल इन एटीपी फॉर्म. एटीपी वर्ड आपने सुना होगा, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो ये एटीपी फॉर्म में एनर्जी यूज कर सकता है ह्यूमन बीइंग. अब मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि एनर्जी सोर्स जो भी एनवायरमेंट में अवेलेबल है वो अलग अलग है, इवन दो ह्यूमन बीइंग भी अलग अलग टाइप के एनर्जी सोर्सेस कंज्यूम करता है. अब ये एनर्जी सोर्सेस अलग क्यों है, क्योंकि एनवायरमेंट की वजह से, और एनवायरमेंट तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते. इसके लिए वैरिड एनर्जी सोर्सेज जब हम कंज्यूम करेंगे तो ईच एंड एवरी सोर्स में जो भी एनर्जी है वो एनर्जी कॉमन फॉर्म में बाहर आनी चाहिए. अब एनर्जी कॉमन फॉर्म में बाहर कब आएगी, जब उस पर्टिकुलर फूड का ब्रेकडाउन होगा. सपोज हमने फ्रूट्स खाए हैं, देन थोड़ी देर के बाद हमने कुछ वेजिटेबल्स कंज्यूम किए हैं, एंड आफ्टर सम टाइम हमने मीट कंज्यूम किया है, दैट मीन्स नॉन वेज ये फूड कंज्यूम किया है. यहाँ पे हम
3 डिफरेंट सोर्सेस का यूज करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स. पहला फ्रूट्स, सेकंड वन वेजिटेबल्स एंड थर्ड वन इज मीट. अब these 3 sources are different but these 3 sources contain energy. अब हमारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए या हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए इन तीनों सोर्सेस की जो भी एनर्जी है वो कॉमन फॉर्म में बाहर आनी चाहिए, राइट. फिर कॉमन फॉर्म में बाहर आने के लिए इनका क्या होना चाहिए, ब्रेक डाउन होना चाहिए, और वो भी ब्रेक डाउन एक कॉमन प्रोसेस से ही होना चाहिए. अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से ये बैकग्राउंड ब्रेक डाउन होगा तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी बाहर आने वाली है, और वो एनर्जी रिलीज होके हमें कुछ फायदा नहीं है. हमें क्या चाहिए, कॉमन फॉर्म में एनर्जी चाहिए. इसके लिए हम कितने भी वैलिड टाइप की एनर्जी सोर्सेस कंज्यूम करें, उनका ब्रेक डाउन एक कॉमन प्रोसेस से ही होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, राइट, दैट और वी कैन से ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस. तो इन्हीं रिएक्शंस की हेल्प से कौन सा भी फूड मटेरियल ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करेगा उसका ब्रेक डाउन होता है. एंड ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस जिस किसी लाइफ प्रोसेस में होते हैं, दैट लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज respiration. Clear? Here I told you the interrelationship between nutrition and respiration. जैसे कि न्यूट्रिशन में हम फूड कंज्यूम करते हैं और ये सभी वेरिड फूड का इस रेस्पिरेशन प्रोसेस से ब्रेक डाउन होता है एंड एक कॉमन एनर्जी हमारे बॉडी में रिलीज होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एंड दिस एटीपी energy is utilized by our cells or our body for various cellular activities. Clear? So in this way, this is the second life process, respiration, which is completely depend on nutrition. Now when these breakdown activities, digestion activities are carried out inside the body, sometimes byproducts created, right? That means chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation, and due to this activity there is a formation of byproducts. अब these byproducts are not necessary for our body, or these byproducts are not useful for our body, and if these sources remain as it is in our body, they may be harmful for us. So what happens, or what should happen at that time, these byproducts or these non unwanted byproducts should be removed from our body. How these byproducts will remove from our body? There is a specific life process, it is excretion. So through excretion life process, these all waste material get removed. Means what? Excretion life process activated only after nutrition and respiration process. So without nutrition and respiration, excretion not having any role. Correct? So we can say all the life process have complete coordination between each other, and only because of this reason all living beings are existed, or all living being can survive. Not only human being, but we can say because of proper coordination in life processes, all animals, all living organisms can survive. Okay, got this point? कोई भी लाइफ प्रोसेस सिंगली काम नहीं करती है, एक लाइफ प्रोसेस को दूसरे लाइफ प्रोसेस के ऊपर डिपेंड रहना ही होता है. तो जैसे कि मैंने आपको ये 3 लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया, एक फॉर एग्जांपल आप फोर्थ लाइफ प्रोसेस भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. अब ये ट्रांसपोर्टेशन कब होता है? अब न्यूट्रिशन प्रोसेस से हमने फूड इनटेक किया, रेस्पिरेशन प्रोसेस से उस फूड का ब्रेकडाउन हुआ इनटू सिंपलर कंपाउंड्स. एक्चुअली रेस्पिरेशन प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल कंपाउंड्स. तो ये सिंपल कंपाउंड्स हर एक सेल के पास पहुंचने चाहिए, और उस हर एक सेल के पास ये सिंपल कंपोनेंट्स पहुंचाने का काम कौन सी प्रोसेस करती है? ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस करती है. दैट मीन्स न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन, एंड एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या है? एक्सक्रीशन. So these all processes are interlinked with each other. Clear? Now there is a short form जो कि आपको लाइफ प्रोसेसेस के बारे में इन शॉर्ट आप कैसे ध्यान में रख सकते हैं उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है, दैट इज मिसेस ग्रेन, जो कि इंपॉर्टेंट 7 लाइफ प्रोसेसेस इस वर्ड में आपको देखने को मिलेंगे. मिसेस ग्रेन, दैट इज M फॉर मूवमेंट, R for respiration, S for sensitivity,
G for growth, R for reproduction, E for excretion, N for nutrition. तो एक शॉर्ट फॉर्म है विशेष ग्रेन, जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। अब मूवमेंट पहला, अब मूवमेंट मीन्स व्हाट, ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव, इवन प्लांट्स आल्सो। कैसे मूव होते हैं प्लांट्स? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? नो, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट, दैट इज फ्रॉम सॉइल टू एयर। इस तरह से प्लांट मूव होते हैं। जो प्लांट की जो हाइट बढ़ती है उसको तो हम मूवमेंट ही कहेंगे, राइट। हाँ, अदर देन प्लांट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट होते हैं, जिसको हम मूवमेंट कहते हैं, राइट। सेकेंड लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, इस प्रोसेस का एक्चुअली मेन मीनिंग क्या है? गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, जो कि ब्रेक डाउन करके वो मिलती है। थर्ड वन है सेंसिटिविटी। अब ये सेंसिटिविटी मतलब सेंसेशन, हम जो सराउंडिंग में रहते हैं तो सराउंडिंग के बारे में हमें जितने भी सराउंडिंग में चेंजेस होंगे तो वो चेंजेस हमारी बॉडी डिटेक्ट कर सकती है, तो सेंसिटिविटी, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। देन ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, राइट। नॉन लिविंग थिंग्स जिनकी ग्रोथ होती है, बट एक मेन कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, एक स्पेसिफिक ग्रोथ होती है, जैसे कि इंटरनल ग्रोथ हम जिसको कहते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स की ग्रोथ होती है। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आएगा कि नॉन लिविंग थिंग्स की ग्रोथ कैसे होगी, बट नॉन लिविंग थिंग्स की भी ग्रोथ होती है, बट उनकी ग्रोथ एक्सटर्नल रहती है। जैसे कि एक सपोज माउंटेन है, अब कौन सा भी माउंटेन कैसे तैयार होता है कि वहां पे एक्सटर्नली कोई ना कुछ मटेरियल सैचुरेट होता रहता है, धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ेगी। तो हाइट बढ़ना, साइज बढ़ना, इसको तो हम ग्रोथ कहते हैं। तो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है नॉन लिविंग थिंग्स की, बट लिविंग थिंग्स की ग्रोथ रहती है इंटरनल, क्योंकि इंटरनल सेलुलर डिविजन्स होते रहते हैं एंड वो ग्रोथ होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में ये मेन डिफरेंस है। ओके, देन नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, जिसमें मोर लिविंग थिंग्स हम प्रोड्यूस करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है, इट इज नॉन इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। देन नेक्स्ट वन है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट, जो भी बाय प्रोडक्ट मैंने आपको बताया जो बॉडी में तैयार हुए हैं उनको बॉडी से बाहर थ्रो करना है, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। देन न्यूट्रिशन है, जैसे कि हमने डेफिनेशन ही देखी कि मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, और टेकिंग एंड यूजिंग द फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। सो एक शॉर्ट फॉर्म के हेल्प से आप इस ऑल लाइफ प्रोसेस को ध्यान में रख सकते हो। अब मेन थिंग ये है, ऑर्गेनिज्म जो भी अर्थ प्लैनेट पे हमें देखने को मिलते हैं, दिस ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ हैविंग मेनली टू टाइप्स, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लाइफ प्रोसेसेस कैसे कंप्लीट होते हैं एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लाइफ प्रोसेसेस कैसे कंप्लीट होते हैं, राइट। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो जैसे कि आपको पता है कि ऑर्गन्स नहीं रहते, टिश्यूज नहीं रहते, तो कैसे लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। वाइल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में तो टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम्स है, और ये सभी अपने एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से लाइफ प्रोसेसेस और मेंटेनेंस जॉब जिसको हम कहते हैं वो कंप्लीट करते हैं। बट व्हाट अबाउट यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स? यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनको भी सर्वाइव होना है, तो सर्वाइवल के लिए लाइफ प्रोसेसेस उनकी सेल में होना बहुत जरूरी है। फिर ये किस तरह से ये लाइफ प्रोसेसेस होते रहते हैं या होते ही नहीं है, ये हम देखने वाले हैं। अब यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में तो फर्स्ट थिंग वो लिविंग होने की वजह से लाइफ प्रोसेसेस तो होने ही वाले हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि देयर इज ए नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग फूड और एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट। मतलब फूड इनटेक करने के लिए, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए या वेस्ट रिमूव करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। एक्चुअली यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की होल बॉडी, दैट मीन्स एंटायर सरफेस ऑफ बॉडी is having close contact with the environment. बट अगर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे तो ईच एंड एवरी पार्ट का एनवायरमेंट के साथ हमारा क्लोज कांटेक्ट नहीं है। जैसे कि हमारा एक ऑर्गन है स्किन, इस स्किन का हमेशा एनवायरमेंट के साथ कांटेक्ट रहता है, बट जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है तो इंटरनल ऑर्गन्स का कांटेक्ट एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ नहीं रहता है, करेक्ट। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट, इनकी होल बॉडी हैविंग क्लोज कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट, करेक्ट। और ये क्लोज कांटेक्ट एनवायरनमेंट के साथ होने की वजह से ये जो भी लाइफ प्रोसेसेस उनके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्यूट्रिशन,
रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सभी लाइफ प्रोसेसेस एक कॉमन मैकेनिज्म से होते हैं. दैट मैकेनिज्म इज डिफ्यूजन. एक डिफ्यूजन जिसको हम कहेंगे कि फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. जैसे कि आपने एक 8th स्टैंडर्ड में ये बात इस टॉपिक को आपने पढ़ा है कि एक सेलुलर मूवमेंट्स होते रहते हैं. ये सेलुलर मूवमेंट्स अलग अलग तरीके से होते हैं. उसमें एक टाइप है मूवमेंट का और एक प्रोसेस जिसको हम कहेंगे या मैकेनिज्म कहेंगे, दैट इज डिफ्यूजन. फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ये मूवमेंट होती रहती है. सपोज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को फूड इनटेक करना है, तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में जो फूड अवेलेबल है, ये फूड का कॉन्सेंट्रेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो फूड है उससे ज्यादा ही रहेगा. और वो फूड इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को चाहिए, उसको रिक्वायरमेंट है उस फूड की, तो वो उस फूड को कंज्यूम करेगा. तो ये एक डिफ्यूजन मैकेनिज्म है. उस डिफ्यूजन मैकेनिज्म से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है. समटाइम्स कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी है जो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर तैयार करके उस फूड को इनटेक करते हैं. उसमें एक अमीबा, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि वो जैसे ही फूड पार्टिकल उसके किसी भी बॉडी की तरफ से आता है या क्लोज कांटेक्ट आता है फूड पार्टिकल का, तो वहीं पे अमीबा सुडोपोडिया तैयार करता है. एंड सुडोपोडिया की हेल्प से वो उस फूड को इनटेक करता है, जिसको हम एनगल्फिंग कहते हैं. तो इस तरह से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जो एक पर्टिकुलर टेम्पररी स्ट्रक्चर तैयार करके फूड को इनटेक कर सकते हैं. बट ओवरऑल ऑल द लाइफ प्रोसेसेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट होने के लिए कोई ऑर्गन्स नहीं है. एंड एक सिंपल सेलुलर मूवमेंट की हेल्प से ये सभी लाइफ प्रोसेसेस वो कंप्लीट करते हैं. अब ये सेलुलर मूवमेंट से ऑल द लाइफ प्रोसेसेस लाइक रिप्रोडक्शन, फीडिंग, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब के सब वो कंप्लीट करते हैं. एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये सब लाइफ प्रोसेसेस एक ही सेल में होते हैं. करेक्ट. एक्चुअली मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में एक एक लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए सेपरेट ऑर्गन सिस्टम है. जैसे कि डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए एलिमेंट्री कैनाल, उसमें वेरियस ऑर्गन्स है. रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए वेरियस ऑर्गन्स है लाइक लंग्स, नोज एटसेट्रा. बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑल द लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट होने के लिए ऐसा कोई एक डिफरेंट डिफरेंट सेल, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन नहीं है, बल्कि एक ही सेल में ये सभी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. राइट. फिर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अमीबाज है, बैक्टीरियाज है, प्लैंक्टन्स है. ये सभी ऑर्गेनिजम्स में एनवायरनमेंट के साथ क्लोज कांटेक्ट होने की वजह से डिफ्यूजन हो या अदर सेलुलर मूवमेंट्स हो, उनकी हेल्प से लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं. नाउ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. करेक्ट. जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स ही है सिलेक्टेड जिनका ही कांटेक्ट एनवायरनमेंट के साथ होता है. तो इसकी वजह से सिंपल डिफ्यूजन, दिस प्रोसेस इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेल्स. जैसे कि मैंने आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बताया कि एक डिफ्यूजन प्रोसेस से उस पर्टिकुलर सेल की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट होती है. बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये पॉसिबल नहीं है. उसके पीछे रीजन क्या है? एक तो ऑर्गेनिज्म की साइज एंड दूसरा रीजन है कि सभी सेल्स का कांटेक्ट एनवायरनमेंट के साथ नहीं रहता. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट करने के लिए क्या रहते हैं? तो दे आर हैविंग वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड दीज बॉडी पार्ट्स आर स्पेशलाइज्ड इन फंक्शंस. जैसे कि आपको पता है, सपोज माउथ, ये हमारा एक बॉडी पार्ट है. तो माउथ का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, दैट इज चेविंग ऑफ फूड. देन सपोज हम कहेंगे लंग्स, ये हमारा एक बॉडी पार्ट है. तो इसका फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. करेक्ट. देन सपोज स्टमक है, तो हमारा स्टमक एक हमारा बॉडी पार्ट है. तो उसका फंक्शन क्या है? तो डाइजेशन करना, या जो भी फूड हमने कंज्यूम किया है उस फूड का अदर जूसेस के साथ वेल मिक्सिंग करना. ऐसा एक स्टमक का फंक्शन है. अगर हम केयरफुली देखेंगे तो ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट इज स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन. किसी भी बॉडी पार्ट का फंक्शन दूसरा बॉडी पार्ट परफॉर्म नहीं कर सकता. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी आपने देखा है क्या माउथ की जगह पे स्टमक ने ही फूड इनटेक करने का काम चालू किया और स्टमक का फंक्शन माउथ ने चालू किया? ऐसा कभी भी नहीं होता. ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट इज स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन. तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है
कि स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करने वाले वेरियस बॉडी पार्ट्स उनमें प्रेजेंट रहते हैं. These body parts are interlinked with each other and form a organ system, and with the help of this organ system कोई भी पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर एलिमेंट्री कैनल और डाइजेशन इस प्रोसेस के बारे में देखेंगे, तो डाइजेशन ये लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए एक ऑर्गन सिस्टम है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. और ये डाइजेस्टिव सिस्टम वेरियस बॉडी पार्ट से बनी है, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड टू द एनस. माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस. इस तरह से वेरियस बॉडी पार्ट्स इंटरलिंक्ड होते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम तैयार होती है, एंड एक ऑर्गन सिस्टम की हेल्प से एक लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होती है. कौन से ऑर्गेनिजम्स में? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. अब विद जैसे कि ऑर्गन्स मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट रहते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, जो अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन भी करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. जैसे कि स्किन हम देखेंगे तो स्किन इज पर्टिकुलर टिश्यू, तो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है स्किन, और ये स्किन की हेल्प से भी ऑक्सीजन की लेन देन होती रहती है. अगर ह्यूमन बीइंग में नहीं हो सकती है, तो अगर हम प्लांट्स के बारे में देखेंगे, तो प्लांट्स का आउटर कवरिंग जिसको हम बार्क कहते हैं, तो बार्क के ऊपर स्मॉल स्मॉल ओपनिंग रहते हैं जिसको हम लेंटिकल्स कहते हैं, और लेंटिकल्स की हेल्प से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. दैट मीन्स कि कौन से भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज रहते हैं जो कि ऑर्गन्स के साथ साथ काम भी करते हैं. और एक एग्जांपल हम स्पेशलाइज्ड टिश्यूज का ले सकते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, राइट. तो जाइलम जो कि वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के बॉडी में, एंड फ्लोएम जो कि फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के बॉडी में. तो ये कोई ऑर्गन नहीं है, जाइलम एंड फ्लोएम आर टिश्यूज. सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट होने के लिए बॉडी पार्ट्स भी हेल्प करते हैं, एज वेल एज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज भी हेल्प करते हैं. क्लियर? तो इन दिस वे आज हमने देखा व्हाट इज मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस, विच आर द इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस, एंड हाउ दीज लाइफ प्रोसेसेस आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर. बाद में हमने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरह से लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करता है, देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरह से लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट करता है. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वन बाय वन एक एक लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट मुझे आप आस्क कर सकते हो. आपको स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहा है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे. तो थैंक यू सो मच.